Hello students, this is our fourth video for class 11th of the business studies, and this is our first chapter, nature and purpose of business. Today we are going to study about the classification of the business activities कि business activities को हम कैसे classify करते हैं, कितने parts हम उसको classify करते हैं. In the definition of the business, we studied that the business is an economic activity in which the production and exchange of goods and services take place. Okay. तो there are the two things in the business. One is the production and the second one is the exchange. कि business के अंदर दो चीज़ होती है, one is the production और दूसरा आपका क्या होता है, exchange. तो what is the meaning of the production? Production means the conversion of the raw material into the finished goods. कि raw material को हम finished goods में convert करें, that is the production. We produce something from the raw material, that is called the production. And exchange means we purchase the final goods for resale in the market. कि market में हम resale के लिए final goods को purchase करें, that is the exchange. तो business activity are the classified into the two categories. One is the industries and the second one is the commerce. तो industries refers to the production. Industries किसको show कर रही है, production. That is the conversion of the raw material into the finished good. It is called the industries. And commerce, it is called the exchange of goods from the it is exchange of goods. That is the exchange of the final goods. कि final goods को हम क्या कर रहे हैं, exchange करें. That is called the commerce. Now the industries are the further classified into the three categories. One is the primary industries, second one is the secondary industry, and the third one is the tertiary industries. Okay. Now, what is the primary industries? Primary industries is basically related to the natural resources, okay, or the living organism, or the species, or the tree, flowers, plants. These are the related to the natural resources. So what is the meaning of the primary industries? Primary industries, that is the extraction and production of the natural resources, okay, extraction and production of the natural resources and reproductions of the living species or the plants or the tree. Okay, this is called the primary industries, which is related to the extraction. Now primary industries are the further classified into the two categories. One is the extractive industries and the second one is called the genetic industries. So what is the meaning of the extractive industries? Extractive industries क्या होता है, नाम ये extraction from the natural resources. Okay, extraction यानी natural resources से कुछ चीज़ को extract करना, निकालना. फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग, फॉर एग्जाम्पल टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट है, उसमें से टिम्बर काट के हमने निकाली फॉर द बिजनेस पर्पज. ओके, फार्मिंग करी हमने बिजनेस पर्पज के लिए. दिस इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज. एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज और द प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. की नेचुरल रिसोर्सेज को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम क्रॉप्स का प्रोडक्शंस करते हैं फार्मर्स, तो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोडक्शन करना है या एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज. एंड व्हाट इज जेनेटिक इंडस्ट्रीज? इट इज द रिप्रोडक्शंस और द ब्रीडिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ब्रीडिंग ऑफ द एनिमल्स, बर्ड्स और इन द पोल्ट्री फॉर्म. तो दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक इंडस्ट्रीज, जिसमें रिप्रोडक्शंस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का या प्लांट्स का, क्या बोलते हैं, नर्सरीज वगैरह में प्लांट्स का प्रोडक्शंस होता है, रिप्रोडक्शंस होता है. तो दिस इज द extractive and the genetic industries. Now the second one is the secondary industries. What is the meaning of the secondary industries? Generally the secondary industry is used as a raw material of the primary industry to produce the further productions or to produce the finished goods. Finished goods को produce करने के लिए they use the raw material. They use the raw material. किसको रॉ मटेरियल यूज़ कर रही है? जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ का जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करके फिर आगे प्रोडक्शंस करती है. जैसे फॉर एग्जांपल टिम्बर प्रोड्यूस इन द प्राइमरी इंडस्ट्रीज. टिम्बर का प्रोडक्शन किस में हो? प्राइमरी इंडस्ट्रीज में. तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या कर रही है? टिम्बर को कन्वर्ट कर रही है फर्नीचर्स में. ओके, टिम्बर्स को कन्वर्ट कर रही है स्लीपर्स में. तो दिस इज द वर्क ऑफ द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. या जो मिनरल ओर्स का प्रोडक्शंस होता है, इट इज़ द जॉब ऑफ द प्राइमरी इंडस्ट्रीज, बट इट कन्वर्ट इनटू द स्टील, इट कन्वर्ट इनटू द आयरन इन द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज यूज द रॉ मटेरियल ऑफ द प्राइमरी इंडस्ट्रीज. प्राइमरी इंडस्ट्रीज के जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करती है टू प्रोड्यूस द फर्दर प्रोडक्शन. Now secondary industries are the further classified into the two categories. One is the manufacturing industries and the construction industries. Okay, तो first I am telling about the construction industries. Construction industries क्या होती है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज की एक खासियत होती है द प्रोडक्ट्स आर द इमूवेबल. जो प्रोडक्ट्स होता है मूवेबल नहीं होता, इमूवेबल होता है. कि फॉर एग्जांपल द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम,
द कंस्ट्रक्शन ऑफ कनाल्स, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, दीज कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। तो जो कंस्ट्रक्टिंग इंडस्ट्रीज होती है वो इमूवेबल होती है, जिसको आप मूव नहीं करा सकते। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है, दे प्रोड्यूस द गुड्स बाय यूजिंग द रॉ मटेरियल ऑफ द प्राइमरी इंडस्ट्रीज। ठीक है, जो फिनिश प्रोडक्ट है प्राइमरी इंडस्ट्रीज को, उनको यूज करके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उनके रॉ मटेरियल को हम यूज करते हैं, उनके फिनिश गुड्स को हम एज ए रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं। नाउ the manufacturing industries are the further classified into 4 categories. One is called the analytical, then the synthetic industries or synthetical, or processing industries and the assembling industries. Okay, so they are the 4: analytical, synthetical, processing और assembling. Okay, तो इसको हमने 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, फर्दर डिवाइडेड इनटू द 4 कैटेगरीज. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एनालिटिकल इंडस्ट्रीज? एनालिटिकल इंडस्ट्रीज क्या होती है? इन विच वन रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू द डिफरेंट फिनिश गुड्स. एक रॉ मटेरियल डिफरेंट फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक ही रॉ मटेरियल से डिफरेंट फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन होता है. सिंपल फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल होता है क्रूड ऑयल, पेट्रोल का प्रोडक्शन होता है, डीजल का प्रोडक्शन होता है, कैरोसिन्स का प्रोडक्शन होता है, गैसोलिन्स का प्रोडक्शन होता है. तो द रॉ मटेरियल इज द सेम बट इट प्रोड्यूस द डिफरेंट फिनिश गुड्स. वन रॉ मटेरियल डिफरेंट फिनिश गुड, दैट इज कॉल्ड द एनालिटिकल इंडस्ट्रीज. नाउ सिंथेटिक इंडस्ट्रीज क्या होती है? इन विच डिफरेंट रॉ मटेरियल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द फिनिश गुड्स. एक फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट रॉ मटेरियल को यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द सिंथेटिक इंडस्ट्री. सिंथेटिकल तो एनालिटिकल, वन रॉ मटेरियल डिफरेंट फिनिश गुड्स, different raw material one finished good, that is called the synthetical industries. And processing industries in which the production takes the various steps, the raw material takes the various steps to become the finished product. finished product को बनाने के लिए एक ही रॉ मटेरियल को डिफरेंट स्टेप से गुजरना पड़ता है, डेट इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. यानी वन स्टेज कंप्लीट करी, देन गोज टू द सेकंड स्टेज, देन थर्ड स्टेज एंड ऑनवर्ड इट कन्वर्टेड, डेट इट इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन विच द डिफरेंट stage of the production has to be completed to become the finished goods by the raw material. Okay, and the last one is the assembling industries. Assembling industries क्या है? In which different finished goods are the assembled to produce the another finished goods. For example कंप्यूटर में हम डिफरेंट फिनिश गुड्स को असेंबल करते हैं. हम डिस्प्ले को असेंबल करते हैं, हम सीपीयू को असेंबल करते हैं, मॉनिटर्स को असेंबल करते हैं, माउस को असेंबल करते हैं, हम उसके मदरबोर्ड्स को असेंबल करते हैं टू बिकम द फिनिश गुड्स को बनाने के लिए. फॉर एग्जांपल साइकिल इंडस्ट्रीज में क्या आपका सीट अलग हो गया, आपका व्हील अलग हो गया, आपका हैंडल अलग हो गया, ठीक है, बेल उसकी अलग हो गई. तो ऑल दीज आर द असेंबल्ड टुगेदर टू बिकम द फिनिश गुड्स. ओके, तो एनालिटिकल याद करने के लिए, एनालिटिकल्स में वन रॉ मटेरियल डिफरेंट फिनिश गुड्स, सिंथेटिक different finished goods, then different raw material and one finished goods, and assembling में different finished good to become the new finished goods. यानी जो पहले से finished goods है उनको assemble करके एक हमने नया finished goods तैयार किया, that is called the assembling industries, where we assemble the finished goods. जहाँ पर हम finished goods को क्या कर रहे हैं? assemble कर रहे हैं. and the processing industries in which the raw material pass in the different stage of the production to become the finished goods. Okay, now जो जनरली जो कंस्ट्रक्टर इंडस्ट्रीज होती है वो जो रॉ मटेरियल यूज़ करती है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का यूज़ करती है. जैसे बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट किसने बनाया? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ने. ठीक है, आयरन किसने बनाया? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ने. और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल यूज़ करती है वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के उसको रॉ फिनिश गुड्स को यूज़ करती है एज ए रॉ मटेरियल. ओके, थैंक यू.